السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ مس رقیہ سمان۔ اپنے آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس سبق کا مشقی کام۔ اس سے پہلے ہم اس سبق کی پڑھائی بما وضاحت کر چکے ہیں۔ ہم مشقی کام کی طرف بڑھنے سے پہلے دیکھیں گے اس سبق کے اہم نکات۔ ابھی اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کون سے اہم باتیں یا اہم واقعات جو ہیں وہ پڑھے تھے۔ تو اس کے لیے ہم بڑھتے ہیں آگے کی جانب۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا انسانیت کی خدمت ہی انسان کا اصل عرفان ہے۔ جب ہم کسی انسان کی خدمت کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد پا لیتے ہیں۔ حسن سلوک، سخاوت اور ایثار کے جذبات موجود ہونے ہی سے معاشرہ خوشگوار اور پرسکون ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی تعریف آداب معاشرت یعنی کہ وہ آداب جو کسی بھی معاشرے کے لیے ضروری ہیں، اس کے تمام پہلو جیسے ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بطور طالب علم ہم دوسروں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم نے سبق کی پڑھائی اور وضاحت کے دوران پڑھا تھا کہ دوسرے طلباء کی پڑھائی میں مدد کر کے پچھلی جماعت کی کتابیں جو اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں انہیں دے کر اور ان کی فیس جمع کر کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی مدد در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنی ہی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے اور معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے، کیونکہ سب مل جل کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہر ضرورت مند کی مدد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یعنی اس کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اب ہم باقاعدہ اس سبق کے مشقی کام کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے پاس یہ سوال ہے، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف ہے ہمارے پاس، ملک کے شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے، 1000، 2000، 3000، 4000۔ تو اس واقعے کو ہم نے بہت اچھی سے پڑھا تھا، تو اس میں صحیح جواب ہے 1000۔ بے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال رائے خدا میں پیش کیا، 1/4، 1/3، نصف، سارا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سارا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 10 گنا۔ اس کا صحیح جواب ہے 2 گنا۔ اگلا ہے ہمارے پاس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال رائے خدا میں پیش کیا، 1/4، 1/3، نصف، سارا۔ اس کا صحیح جواب ہے نصف۔ اب یہ چیز یہاں پر آپ کو ذہن نشین کرنی ہوگی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک میں اپنے گھر کا سارا مال لے کر آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا نصف یعنی آدھا مال لے کر آئے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں، ان کے معنی تحریر کریں۔ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختم کا مطلب ہے ختمہ، آخری، ختم ہو جانا۔ نبیین، نبی کی جمع، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی جانا کہ القابات جو ہوتے ہیں وہ کسی
खास नाम की वजह से, किसी खास खूबी की वजह से जो नाम मशहूर हो जाते हैं वो अलकबात कहलाते हैं। अगले लक़ब की तरफ बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह के रसूल। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर का मतलब होता है बड़ा, बुलंद, अजीम। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि कायनात के अजीम तरीन इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है रहमतुल लिल आलमीन, यानी कि दोनों जहानों के लिए रहमत। दो आलम का मतलब है दोनों जहां, ये दुनिया और आखिरत की दुनिया, दोनों जहानों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए रहमत हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इस सबक के मुताबिक कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका लफ्ज़ से मिलाएं। तो कुछ अल्फाज जब दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलते हैं तभी मुकम्मल होते हैं। हज़रत अबू बकर कालम अलिफ है, इसको हम कालम बे से मिलाएंगे, कालम अलिफ में है हज़रत अबू बकर। जब इनका पूरा नाम, इनका लक़ब सदीक मिलेगा तो ये मुकम्मल हो जाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को हम सदीक के साथ मिलाएंगे। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम फारूक, जो कि उनका लक़ब है, उसके साथ मिलाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ज़ुरुल नूरैन, यानी दो नूरों वाला, इसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के साथ मिलाएंगे। इसी तरह बुलबुल, बुलबुल को हम फूल के साथ मिला देंगे। जंजीर, जंजीर को हम कड़ियाँ के साथ मिलाएंगे। जंजीर छोटी छोटी कड़ियाँ जब वो बाहम मरबूब आपस में मिलती हैं, मरबूत तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो एक जंजीर बनती है। तो जंजीर को हम कड़ियाँ लफ्ज़ के साथ मिला देंगे। दर्द दिल, दर्द दिल को हम इंसान के साथ मिलाएंगे। खुश्क साली, खुश्क साली जब होती है तो फिर कहत पड़ जाता है, खुश्क साली को हम कहत के साथ मिलाएंगे। इसी तरह परवाना, परवाना चूंकि चिराग के इर्द गिर्द घूमता रहता है, इसलिए परवाने को हम चिराग के साथ मिला देंगे। दार फानी को हम दुनिया के साथ मिलाएंगे। दार फानी का मतलब है फना हो जाने वाली दुनिया, तो ये दुनिया फना होने वाली है, दार फानी को हम मिला देंगे दुनिया के साथ। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही टिक से करें। अलिफ है आपके पास। अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, दुरुस्त, इस पर हम टिक लगा देंगे। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता, ये गलत है। गलत पर हम टिक लगाएंगे क्योंकि इंसान दूसरों की मदद कर सकता है। ज़मीन वालों से मेहरबानी करने वाले पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेहरबान होगा, दुरुस्त। अब दुरुस्त पर इसका टिक लगा देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक के बदले में 7 देगा। ये लफ्ज़, ये सेंटेंस यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक के बदले में 10 देगा। यहाँ 7 लिखा गया है, इसलिए हम इसको गलत पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है, फतह मक्का के मौका पर इंसार की जानिब से मुहाजिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला की मदद की नज़ीर मिलना मुश्किल है। ये सेंटेंस गलत है, इसे गलत पर टिक करेंगे क्योंकि ये वाक़या मक्का से मदीना हिजरत के मौका पर, यानी कि हिजरत मदीना के मौका पर जो हमारे इंसार सहाबा हैं, उन्होंने मुहाजिरीन सहाबा की खुले दिल से मदद की, उसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। तो यहाँ फतह मक्का का जिक्र किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, इसे हम गलत पर टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ है, हमारी तारीख
आदाब मुआशरत के मुख्तलिफ पहलुओं की देश मसालों से भरी पड़ी है, मुख्तलिफ मसालों से भरी पड़ी है। हमने ये मिसालें अपने सबक में पढ़ाई और वजाहत के दौरान पढ़ी थी, जिसमें मदीना की में खुश्क साली का वाक़या पढ़ा था, ग़ज़वा तबूक का वाक़या पढ़ा था, जंग यरमूक का वाक़या पढ़ा था। तो इस तरह की बहुत सी और मिसालें भी तारीख़ इस्लाम में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला ने हमेशा भाइयों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर टेश दी, तरजीह दी, फोकियत दी, अहमियत दी। तो यहाँ पर लफ्ज़ लगेगा तरजीह दी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देश की बेमिसाल तारीफ़ रकम की, सखावत की। हमने देखा था अपनी मिसाल में इसको बहुत अच्छे से वाज़ेह किया था। मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखने वाले खुलूस नीयत से इसका इजहार भी करते हैं, यानी कि जब वो मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आते हैं तो खुले दिल से इसका इजहार भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखने वाला मुआशरा उस जंजीर की मानद होता है जिसकी कड़ियाँ बाहम पेश होती हैं, यानी कि बाहम मरबूत होती है, एक दूसरे से मजबूती और तरतीब के साथ जुड़ी होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये सवाल है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुरुल नूरैन क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कि ज़ुरुल नूरैन के मानी हम जानेंगे दो नूरों वाला, यानी कि ज़ुरुल नूरैन के मानी सही तरीके से हम जाने तो इसका मतलब होता है दो नूरों वाला। इसका मतलब ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुकैया जग के बाद दीगरे का मतलब होता है एक के बाद एक, दोनों इकट्ठे नहीं बल्कि एक के बाद एक। तो उनकी दोनों बेटियां उम्मे कुलसूम और हज़रत रुकैया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के निकाह में आई थी, इसलिए आपको ज़ुरुल नूरैन कहा जाता है, यानी कि दो नूरों वाला। अगले सवाल की तरफ हम पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ सबक में मौजूद है मुहावरा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरे के लुग़वी मानी गुफ्तगू और बातचीत के हैं, यानी कि गुफ्तगू करना, बातचीत करना मुहावरा कहलाता है। अब इस कलमे या कलाम को मुहावरा कहते हैं जो अहले ज़बान के उसलूब के मुताबिक हो, यानी कि अहले ज़ुबान जो उस ज़ुबान के बोलने वाले होते हैं उसके मुताबिक हो और अपने हकीकी मानों में नहीं बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल हो। मुहावरा हमेशा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है। अब इसके मानी जो हकीकत में है वो कुछ और हों, लेकिन उसके मजाजी मायने कुछ और हों, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के अपने ही खास मायने होते हैं। मुहावरे का वो मतलब नहीं होता जो ज़ाहिरी तौर पर नजर आए, बल्कि कुछ और होता है, जैसे मजाजी माने कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ईंट से ईंट बजाना, ज़ाहिरी मतलब तो है एक ईंट को दूसरी ईंट से बजाना, जो गलत है। इसके मायने हैं तबाह और बर्बाद कर देना। इसी तरह है भांडा फूटना। अब इसका ज़ाहिरी मतलब बनता है किसी बर्तन का टूट जाना, लेकिन ये गलत मतलब है। इसका मतलब है कोई भेद ज़ाहिर हो जाना, कोई राज खुल जाना। इसी तरह कुछ और मुहावरे हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे तारीफ रकम करना, यानी कि कोई बड़ा काम करना। रूह परवास करना, इसका मतलब है कि रूह का जान से निकल जाना। पानी पानी करना, यानी कि शर्मिंदा कर देना। दाल गलना, अब यहाँ इसका मतलब है कि किसी मकसद का हल हो जाना। बज़ाहिर इनके मायने कुछ और होते हैं, लेकिन हकीकत में इनके मायने कुछ और होते हैं, तो इसको मुहावरा कहते हैं। आपकी किताब में और भी मुहावरे हैं, आप और मुहावरे भी याद करें और उनको सही से समझने की कोशिश करें। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल जुमलों में मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं, आप इन जुमलों में मुहावरात की निशानदेही करें। अब हमारे पास अलीफ है, वो इम्तिहान में नकल करता हुआ पकड़ा गया तो शर्म से देश हो गया। अब यहाँ लगाएंगे शर्म से पानी पानी हो गया, यानी कि शर्मिंदा हो गया। वो बहुत लायक बनता था, मगर जब उस्ताद ने पहला ही सवाल पूछा तो अब
हमारे पास ये मुहावरा है, अंडरलाइन करेंगे, पगले झांकने लगा, यानी कि इधर उधर देखने लगा। वो बाश बेटे की हरकतों की वजह से बाप की इज्जत खाक में मिल गई, यानी कि उनकी इज्जत खत्म हो गई। वो बहुत बेईमान आदमी है, उसने अंदाजी फंड का रुपया खाकर डकार तक ना ली, यानी किसी को बताया तक नहीं। हम कितने मजे मजे की बातें कर रहे थे कि उसने अचानक आकर रंग में भंग डाल दिया, यानी कि उसने आकर हमारा मजा किरकिरा कर दिया। खान साहब, ऐसी भी क्या मसरूफियत कि आप दूसरों के लिए ईद का चांद हो गए, यानी कि कभी कभार नजर आना। अब आपके पास ये मुहावरे हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है। अब बढ़ते हैं हम इस सबक की इक्तबास की तशरीह की जानब। इक्तबास की तशरीह की जानब बढ़ने से पहले हम इक्तबास को देख लेते हैं। ये इक्तबास आपकी किताब के सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, इस सबक के पेज नंबर 11 से, आपकी किताब के पेज नंबर 11 से लिया गया है। अब ये इक्तबास हमारे पास है। खुशगवार और पुरसकून जिंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी है कि अफराद मुआशरा में उसने सलूक, सखावत और ईसार के जज्बात बदरजाए अता मौजूद हों। ऐसा मुआशरा जिसमें हर इंसान दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखे, उस जंजीर की मानद होता है जिसकी कड़ियाँ बाहम मरबूत होती हैं। बसूरत दीगर मुआशरे का शराजा बिखर जाता है। एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना और उसका मुदावा करना ऐसा फेल है जो इंसान को फरिश्तों से बुलंद और मुमताज करता है। आप सब जानते हैं कि जब हम इक़्तिबास की तशरीह करते हैं तो उसमें हम हवाला मतन और सियाक व सबाक का ज़रूर लिखते हैं। अब हवाला मतन क्या होता है, यानी उस सबक के मुतालिक बताना होता है। सियाक व सबाक उस सबक में मौजूद जो असल मकसद है, मरकजी ख्याल को सामने रखना होता है। अब हवाला मतन इस सबक का ये है, इस इक़्तिबास का हवाला मतन, ये इक़्तिबास 8वीं जमात की उर्दू की किताब के सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को से लिया गया है। सियाक व सबाक, इस मतन का सियाक व सबाक ये है कि इस सबक में बताया गया है कि इंसान को एक दूसरे की मदद के लिए बनाया गया है, यानी एक इंसान दूसरे की मदद करे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने, एक दूसरे के मसाइल को समझने और उन्हें हल करने में ही इंसानियत की फलाह है, क्योंकि इंसान इस मुआशरे में मिलजुल कर रहने से ही कामयाब होता है। तारीख इस्लाम एक दूसरे की मदद की मिसालों से भरी पड़ी है। इस सबक में हमने ये भी जाना था कि दूसरों की मदद करना असल में अपनी ही मदद करना होती है। जिंदगी के हर शोबे में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब इस सबक की तशरीह की जानब बढ़ते हैं। हम इसमें देखते हैं कि इस इक़्तिबास में मुसन्नफ़ ने बताया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो इबादत के साथ साथ मखलूक खुदा के काम आ सके, यानी कि अल्लाह की इबादत के साथ उसके बंदों की खिदमत भी कर सके। ज़िंदगी में एक दूसरे के काम आना ही असल इंसानियत है। इंसानियत यही है कि एक दूसरे के दुख दर्द को पहचाने, और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो अपना यानी इंसान होने का असल मकसद जान लेते हैं। एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होकर उनके मसाइल का हल ढूंढना ये असल ज़िंदगी का मज़ा है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी पुरसुकून और बेहतरीन अंदाज में गुजारी जाए तो उसके लिए मुआशरे के हर इंसान में अच्छे बर्ताव, सखावत और इज़हार और कुर्बानी का जज्बा होना ज़रूरी है, यानी कि अपनी ज़रूरत को दूसरों की ज़रूरत पर कुर्बान कर देने का जज्बा मौजूद हो तो वो मुआशरा आगे बढ़ सकता है, बेहतरीन तरीके से कामयाबी के साथ पुरसकून ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। जिस मुआशरे में हर इंसान जब दूसरे इंसान की ज़रूरत का ख्याल रखता है तो वह मुआशरा पुरअमन और अदल इंसाफ का नमूना बन जाता है। बाल फरमाते हैं, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन,
अपना तो बन, यानी कि तू अपने अंदर झांक कर अपनी जिंदगी का मकसद देख ले। अगर तू किसी दूसरे का नहीं बनता, तू अपना बन, यानी कि इंसान बन जा। इंसान क्या है उसके मकसद को जान ले तो कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। तो इंसानियत दूसरों के काम आने का नाम है। अब हम ये देखते हैं कि जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, दूसरों की तकलीफ को महसूस करते हैं, तो वो मुआशरा एक जंजीर की मानंद बन जाता है, जिसकी एक कड़ी दूसरी कड़ी से मजबूती और तरतीब से जुड़ी होती है। अगर उसमें से एक कड़ी भी खराब हो जाए या टूट जाए तो पूरी जंजीर बेकार हो जाती है। इसी तरह मुआशरे में से अगर कुछ लोग तरक्की ना कर सकें तो वो मुआशरा भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम भी हमें इस बात का दर्स देता है कि हम हर मुश्किल में अपने इर्द गिर्द रहने वाले इंसानों की मदद करें, ताकि हमारा मुआशरा पुरअमन हो सके, अमन व मोहब्बत और तरक्की और खुशहाली का नमूना बन जाए। अगर हम दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे तो मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा और इंसानियत की बका को खतरा लाक हो जाएगा। एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करना और उस तकलीफ को दूर करना ऐसा अमल है जो इंसान को फरिश्तों से भी बुलंद और आला मुकाम पर पहुंचा देता है, क्योंकि फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, वो इंसानों के काम नहीं आ सकते। ये अल्लाह ताला ने इंसानों को वस्फ दिया है कि वो अल्लाह की इबादत के साथ साथ दूसरे इंसानों की खिदमत भी कर सकें। जब इंसान दूसरे इंसानों की खिदमत करता है तो उसका मुकाम और भी ज़्यादा बुलंद हो जाता है, क्योंकि हदीस शरीफ में है, जो शख्स अपने भाई की हाजत को पूरा करेगा, खुदा उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा। अब हमें चाहिए कि हम हर ज़रूरतमंद की मदद बिला तफरीक, रंग व नस्ल, यानी उसमें रंग व नस्ल की तफरीक ना रखी जाए, ज़ुबान, मज़हब और इलाके के, सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए करें। हर इंसान का अच्छा और नेक काम मुआशरे की तरक्की का बाइस बनता है। इसी तरह एक कौल है कि इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है। अपने अंदर इंसानियत रखना हमारा इंतखाब है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, इस पर हमारी कोई भी जुर्रत नहीं थी, लेकिन अपने आप को इंसान रखना, अपने अंदर इंसानियत रखना, ये हमारा इंतखाब हो सकता है। इंसान को किसी न किसी सूरत में एक दूसरे की ज़रूरत रहती है, क्योंकि तन्हा इंसान इस मुआशरे में ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता। अब इकबाल फरमाते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, वनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अब इस तशरीह में आपने जाना कि हवाला मतन और सियाक व सबाब के साथ किसी भी इक़्तिबास की तशरीह करेंगे तो वह तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। इस सबक के इरादा की तरफ बढ़ते हैं। सबक के अहम नुकात पर रोशनी डाली गई। इसके जितने अहम नुकात थे उस पर रोशनी डाली हमने। मशक़ी काम को तफसील से समझाया गया, यानी तफसील के साथ मशक़ी काम किया गया। मशक़ी काम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़बात समझाए गए। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़बात हैं उसमें से कुछ अलक़बात इस मश्क में दिए गए थे। ज़ुरुल नूरैन के मानी, यानी दो नूरों वाला, इसके मानी भी समझाए गए। मुहावरा की तफसीली वजाहत की गई। इक़्तिबास की तशरीह व हवाला मतन और सियाको संबाक समझाई गई। अब हम बढ़ते हैं घर के काम की तरफ। तमाम मशक़ी काम किताब पर करना है। मुहावरा की तारीफ और मुहावरात और उनके मायने कापी पर लिखने हैं। इक़्तिबास की तशरीह व हवाला मतन और सियाको सबाक कापी पर लिखनी है। कापी पर काम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। अजीज तलबा, अगर आप किसी सबक को अच्छी तरह जानना चाहते हैं, उस सबक को बमा उसके मशक़ी काम 2 से 3 दफ़ा अगर आप दोहराएंगे तो आप उस पर महारत हासिल कर सकते हैं। अपने अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।